Hello dear students, this is lecture number 9. In this today's lecture we come with a new topic. That one is what is empirical formula, what is molecular formula, and what is percentage composition. And with the help of percentage composition, how to determine empirical formula and molecular formula of the compounds. So first you should know one by one. पहले हम देखो first topic is empirical formula. Empirical formula of a compound. Empirical formula within bracket EF of a compound. Empirical formula. Number 2, molecular formula. Molecular formula MF of a compound. Molecular formula of a compound. So first let us define what is empirical formula, what is molecular formula, and numerical based on empirical formula, molecular formula. The first part, see here, empirical formula, it represents simplest whole number ratio of the atoms of different elements present in one molecule of a substance. First thing देखो, what is empirical formula? Empirical formula, it represents simple whole number ratio of the atoms of different elements present in one molecule of a substance. ये empirical formula. And molecular formula, what is molecular formula? See here, it represents actual number of atoms of different elements present in one molecule of a substance. तो नाउ लेट अस टेक एग्जांपल. एक्चुअली हमने जो डिफाइन किया है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो of the atoms of different elements present in one molecule of a substance. And molecular formula क्या है देखो, this is actual number of, it represents actual number of atoms of different elements present in one molecule of a substance. तो हम एग्जांपल लेते हैं, then it will be very clear. Let us take the example number 1. यहाँ लिखा हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला, यहाँ लिखा मोलिकुलर फॉर्मूला. फर्स्ट थिंग बेंजीन. तो बेंजीन जो है ऑल ऑफ यू नो द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6. तो ये एक ही इन वन मोलिकुल ऑफ बेंजीन 6 कार्बन एटम्स एंड 6 हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट. तो ये फिक्स्ड है, इसको हम फर्दर चेंज नहीं कर सकते हैं. बट एम्पिरिकल फॉर्मूला, इफ यू गो टू द एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो फर्स्ट देखो ये नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है. तो दोनों एलिमेंट का जो एटम का नंबर 6 है, तो 6 कॉमन फैक्टर है, तो 6 से डिवाइड करो. आफ्टर डिवीजन यू विल गेट CH. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज CH. बट मोलिकुलर फॉर्मूला जो है देखो C6H6. अगेन लिसन, एम्पिरिकल फॉर्मूला में डिफाइन क्या किया था, जितना एलिमेंट्स है सारा एलिमेंट का जो भी नंबर है कि मोलिकुल में, तो उसी से हमको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है. जब तक कॉमन फैक्टर है उससे डिवाइड करते जाओ.
लास्ट में जो आएगा दैट वन इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। जैसे बेंजीन का मोलिकुलर फॉर्मूला है C6H6, तो 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, तो नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो में 6 है, तो कॉमन 6 कॉमन है, 6 से हमने डिवाइड किया दोनों को तो 1 मिल गया, तो CH is the molecular formula. Next, let us take another example. Example number 2, ethene molecule. Ethene molecule, all of you know molecular formula C2H4. तो अभी एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना है, 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 2 and 4 में कॉमन फैक्टर कितना है, 2 है, तो ये नंबर को 2 से डिवाइड करो, तो आफ्टर डिवीजन यू विल गेट दिस वन CH2 मिल गया। तो ये है एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो यही है एम्पिरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला। नेक्स्ट लाइन हम क्या डिस्कस करेंगे, सी ये रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। रिलेशन बिटवीन, दिस इज बिटवीन EF and MF, empirical formula and molecular formula. So relation is MF equal to EF into N, where N equal to molecular mass, M mass meaning is molecular mass divided by empirical formula mass. Again listen, what is N here? तो N क्या है, N का वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, molar mass of the compound divided by EF mass meaning is empirical formula mass, वही से हमें n वैल्यू मिल जाएगा। तो वहाँ से अगर इफ यू नो द एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, तो आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ n तो वी कैन इजीली कैलकुलेट दिस। तो नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट वन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मीनिंग क्या है, देखो एक मोलिक्यूल इज गिवन टू यू, तो उसी मोलिक्यूल में मानो कि जितना भी डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो हर एक एलिमेंट की मास परसेंटेज कितना है उसी कंपाउंड में, वही है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। मास परसेंटेज कितना है, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज बाय मास ऑफ एन एलिमेंट इन ए compound equal to number of atoms into atomic mass, number of atom into atomic mass divided by molecular mass, M mass, molecular mass into 100. So this is the formula, percentage of elements calculation का this is the formula. तो ये formula है, see here what is the meaning of this formula and how will you apply this. इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, तो उसको एक एग्जांपल लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल, देन इट विल बी क्लियर। तो एक एग्जांपल इज H2O, meaning is in water molecule we have to calculate the mass percentage of hydrogen and mass percentage of oxygen. The first line see here, तो हम लिखेंगे percentage by mass of hydrogen equal to, पहले देखो इन वन मोलिक्यूल, सीधा मोलिकुलर फॉर्मूला, एक ही मोलिक्यूल में कितना हाइड्रोजन एटम है, 2, तो नंबर ऑफ एटम 2 है, इनटू हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करना है हमने एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड, तो यार कंपाउंड कौन है, मोलिक्यूल कौन है, वाटर के मोलिकुलर मास 18, तो इनटू 100, तो आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 11.1%, 11.1% is percentage composition. Next part see here, तो परसेंटेज बाय मास ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है हमें, परसेंटेज बाय मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1 है, इनटू एटॉमिक मास 16 डिवाइडेड बाय 18 इनटू 100, 18 into 100, तो आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 88.9%, 88.9%। तो यही है परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मीनिंग, यही है। तो नेक्स्ट देखो हमारा टारगेट क्या है, तो इंस्टेड ऑफ दिस कंपाउंड, ये जो कंपाउंड हमने लिखा है, इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस वन, तो ये if mass percentage of hydrogen and mass percentage of oxygen given, using the mass percentage of hydrogen and oxygen, how will you calculate the empirical formula of water
और मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ वाटर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो उसी के ऊपर हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, व्हाट इज मोलिकुलर फॉर्मूला, एंड सेकंड थिंग हमने क्या किया, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। तो नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या किया, देखो परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन मीनिंग इज मास परसेंटेज ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। तो उसका फॉर्मूला ऑलरेडी यू हैव गॉट। तो ये फॉर्मूला में देखो एप्लीकेशन, एक एग्जांपल, कैसे कौन सा एलिमेंट का मास परसेंटेज कितना है, हाउ टू कैलकुलेट, द एग्जांपल यू हैव गॉट। So now with the help of this thing, percentage element will be given. With the help of this thing, how will you calculate the empirical formula and molecular formula? कैसे calculate किया जाता है? See, come to this point. Numerical question. Question is, an organic compound contains an organic compound contains 49.3% of carbon, 6.84% of hydrogen and 43.86% of oxygen. Oxygen, full stop. What is the empirical formula? Empirical formula of the compound. Of the compound. Next line, if the vapor density Vd of the compound is 73, then determine the molecular formula. Molecular formula of the compound. Of the compound. तो दिस इज आवर क्वेश्चन। तो पहले देखो बोला है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जहाँ कार्बन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो कार्बन की मास परसेंटेज दिया हुआ है, हाइड्रोजन की मास परसेंटेज दिया हुआ है, ऑक्सीजन की मास परसेंटेज दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। नेक्स्ट, इफ द वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड इज 73, then determine the molecular formula of the compound. So now come to the solution of this part. Come to the solution. The solution may see here, solution. Solution टेबल फॉर्म में सॉल्व करेंगे हम। फर्स्ट लाइन एलिमेंट, सेकेंड लाइन परसेंटेज बाय मास, थर्ड लाइन एटॉमिक मास, फोर्थ लाइन नंबर ऑफ मोल्स, फिफ्थ लाइन सिंपल रेशियो, लास्ट लाइन सिंपलेस्ट whole number ratio. Simplest whole number ratio. तो नेक्स्ट देखो एलिमेंट दिया है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। दिस आर द थ्री एलिमेंट्स गिवन। तो नाउ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के लिए तो मास परसेंटेज जो दिया है वो पहले लिखो। कार्बन 49.3, हाइड्रोजन 6.84, ऑक्सीजन 43.86। द एटॉमिक मास कार्बन की 12 है, हाइड्रोजन की 1 है, ऑक्सीजन की 16 है। तो अभी नंबर ऑफ मोल जब हम कैलकुलेट करेंगे, ये जो मास परसेंटेज है इसी को एटॉमिक मास से डिवाइड करो। तो नंबर ऑफ मोल्स 49.3 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू यू विल गेट 4.1।
तो नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 6.84 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 6.84। हाइड्रोजन की एटॉमिक मास 1 है। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन 43.86 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू 2.7। तो नाउ ये तीनों एलिमेंट की नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट किया है हमने। जब नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट किया है, आफ्टर कैलकुलेशन देखो ये कार्बन है 4.1 मोल, हाइड्रोजन है 6.84 मोल और ऑक्सीजन है 2.7 मोल। तो नाउ आउट ऑफ दिस थ्री वैल्यू सबसे कम कौन है? ऑक्सीजन है। तो उसी वैल्यू से क्या करो, एक से इसको भी डिवाइड करो, बाकी दोनों को भी डिवाइड करो। मीनिंग इज ऑक्सीजन के इस नंबर 2.7 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अभी 6.84 को फिर 2.7 से डिवाइड करो तो यह विल गेट 2.5। बाकी 4.1 को 2.7 से डिवाइड करो, दिस विल गेट 1.5। तो अभी देखो ये सिंपल रेशियो जो मिला है ये होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन में आ गया है। तो इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हाउ विल यू कन्वर्ट दिस इनटू होल नंबर? मल्टीप्लाई विथ ए सुइटेबल नंबर, मिनिमम से शुरू करो। तो यहाँ देखो ये जो नंबर मिला है, इफ यू मल्टीप्लाई दिस नंबर, थ्री नंबर, दिस एंड दिस, इफ यू मल्टीप्लाई दिस थ्री नंबर बाय 2 तो ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 यहाँ हो जाएगा, 5 यहाँ हो जाएगा 2। ये तीनों को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। आफ्टर दैट देखो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मिल गया। जब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मिल गया, नाउ एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इक्वल टू CHO। तो CHO में कार्बन कितना है? 3 है तो C3, हाइड्रोजन 5 है तो H5, ऑक्सीजन 2 है तो O2। ये जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मिला है, तो ये जो नंबर को अभी उसी एलिमेंट के सब्सक्रिप्ट, एटॉमिक सिंबल के बाद सब्सक्रिप्ट करो। दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। नेक्स्ट एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ऑफ द कंपाउंड इक्वल टू, तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला मिला है, वहां से एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट कार्बन एटॉमिक मास 12 इंटू 3 प्लस हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1 इंटू 5 प्लस ऑक्सीजन एटॉमिक मास 1 इंटू 2। तो आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 73 ग्राम। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास मिल गया। नेक्स्ट मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड, एम मास ऑफ द कंपाउंड इक्वल टू, तो वेपर डेंसिटी दिया है 2 इंटू VD, वेपर डेंसिटी, तो 2 इंटू वेपर 73 दिया है, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। तो नेक्स्ट पॉइंट सी हियर, molecular formula of the compound equal to empirical formula into n। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें कितना मिला था? C3H5O2 दी पावर n। वो n क्या है, n को कैसे कैलकुलेट करना है हमने थ्योरी में बोला है। तो where n इक्वल टू, n कैलकुलेशन के लिए गोइंग टू द नेक्स्ट पेज, where n इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो मोलर मास हमें कितना मिला है? 2 इंटू 73, एम्पिरिकल फॉर्मूला 73, तो 73 7 कैंसिल, इक्वल टू 2। तो n इक्वल टू 2 मिल गया। जब n इक्वल टू 2 मिल गया तो मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इक्वल टू C3H5O2, 2 लिखो, ये 2 से पूरा मल्टीप्लाई कर दो नंबर को, तो C6H10O4। तो दिस इज द मोलिकुलर फॉर्मूला। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल सी है डियर स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल वी डिस्कस बेस्ड ऑन दिस परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करना है, ये मेथड में फोकस करो। फर्स्ट टेबल फॉर्म में सॉल्व किया है, पहला कॉलम एलिमेंट, परसेंटेज बाई मास जो दिया है वही लिखा है हर एक एलिमेंट का, एटॉमिक मास, देन गिवन परसेंटेज बाई मास को एटॉमिक मास से डिवाइड करो तो नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा।
जब नंबर ऑफ मॉल मिल गया तो उसी को सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉल, जिस एलिमेंट की नंबर ऑफ मॉल सबसे कम है तो उसी वैल्यू से उसको भी डिवाइड करो, बाकी एलिमेंट का नंबर ऑफ मॉल को भी डिवाइड करो। तो आफ्टर डिविजन जो आएगा वो सिंपल रेशियो है। अगर सिंपल रेशियो ऑलरेडी होल नंबर में आ गया तो बस उसको डायरेक्ट सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में भी वही वैल्यू लिखेंगे हम। अगर होल नंबर में नहीं आया, फ्रैक्शन में आ गया, तो देन उस फ्रैक्शन को एक सुइटेबल नंबर से मिनिमम वैल्यू, सुइटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको होल नंबर में कन्वर्ट करो। तो आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू होल नंबर, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या करेंगे, जिस एलिमेंट के लिए जो जो नंबर मिला है उस एलिमेंट के एटॉमिक सिंबल के नीचे सब्सक्रिप्ट करो वो नंबर। तो वो हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। देन what is empirical formula mass, what is molecular mass, and how to find out the molecular formula. Relation between molecular formula empirical formula already you have got, तो हमने वही किया है, n का वैल्यू कैलकुलेट किया है। आफ्टर कैलकुलेशन we have got this value. So this is the first numerical. Now let us take the second numerical. Based on this second numerical, minimum molecular mass कैसे कैलकुलेट किया जाता है, see here second one, question number 2. Question number 2, an enzyme contains 3.2% of sulfur by mass. Full stop. Calculate the minimum molecular mass. Minimum molecular mass of the enzyme. So before solution, come to this side. What is the meaning of minimum molecular mass and how will you calculate from the percentage composition? तो all of you know except non-stoichiometric compounds. बाकी compound में क्या होता है, जैसे मानो कि वाटर, तो वाटर में क्या है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन का सब्सक्रिप्ट 2 लिखते हैं, ऑक्सीजन एक ही एटम है 1 लिखते नहीं है हम जनरली। तो एक्सेप्ट नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड, बाकी में क्या होता है, देखो एक ही मोलिकुलर फॉर्मूला जो दिया जाता है उसी में कोई भी एलिमेंट्स मिनिमम कितना प्रेजेंट होता है, 1। अगर 1 मोल ऑफ वाटर मानेंगे तो वहाँ देखो हाइड्रोजन 2 मोल से, ऑक्सीजन 1 मोल से। तो ये जो परसेंटेज कंपोजिशन से मिनिमम मोलिकुलर मास कैसे कैलकुलेट करना है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, हमने एटलीस्ट उसी एलिमेंट का 1 मोल उसी कंपाउंड में प्रेजेंट है ये मान के कैलकुलेट करेंगे। तो 1 मोल ऑफ दैट एलिमेंट का कितना मास होगा, उस एलिमेंट का जो ग्राम एटॉमिक मास है वही है। तो वो कॉन्सेप्ट लेके सी हियर हाउ विल यू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। कम टू द सॉल्यूशन नाउ। Solution. In the solution, now we can write 3.2 gram of sulfur atoms present in 100 gram of the compound. Present in 100 gram of the compound. इसका मीनिंग यही है, 3.2% सल्फर बायोमास मीनिंग इज वो एंजाइम जो है उसी एंजाइम का 100 ग्राम में 3.2 ग्राम सल्फर है। तो अभी हम 1 मोल सल्फर प्रेजेंट कितने ग्राम में प्रेजेंट है वो कैलकुलेट करेंगे। तो 1 मोल सल्फर मीनिंग इज उसका ग्राम एटॉमिक मास, उसका ग्राम एटॉमिक मास कितना है, 32। तो देयरफॉर 32 ग्राम ऑफ सल्फर एटॉम्स प्रेजेंट इन 100 डिवाइडेड बाय 3.2 into 32 gram of the compounds equal to 1000 ग्राम पर मोल। तो ये मिनिमम मोलिकुलर मास यही है। तो याद रखो, अगर किसी एलिमेंट के जब मास परसेंटेज दिया हुआ है, मिनिमम मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो हमेशा उसी एलिमेंट का 1 मोल उसी कंपाउंड का कितना ग्राम में प्रेजेंट है, तो ये हमको कैलकुलेट करना है। तो मास परसेंटेज दिया हुआ है तो 1 मोल की जगह में कितना मास यूज कर कैलकुलेट करेंगे, उसका ग्राम एटॉमिक मास। तो हमने वही किया है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर एटम प्रेजेंट इन, परसेंटेज में दिया हुआ इसलिए 100 लिखा है हमने, टोटल 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड, देयरफॉर 32 ग्राम एटॉमिक, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32, देयरफॉर 32 ग्राम प्रेजेंट इन दिस। तो ये है मिनिमम मोलिकुलर मास के कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। एन एल्कालॉइड
बायोमोलिक्यूल है, हाँ। एल्कालॉइड कंटेन्स 17.28% ऑफ नाइट्रोजन बायोमास, फुल स्टॉप। एक एल्कालॉइड है जहां नाइट्रोजन की परसेंटेज दिया हुआ है 17.28%। तो नेक्स्ट क्या बोला है, if the molecular mass of the alkaloid is, if the molecular mass of the alkaloid is, if the molecular mass of the alkaloid is 162, then calculate the number of nitrogen atoms, calculate the number of nitrogen atoms present in one molecule of the alkaloid। ये हमको कैलकुलेट करना है। तो याद रखो नाइट्रोजन की मास परसेंटेज दिया हुआ है, तो कम टू द सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन में एक बार देखो, come to the solution, see here the percentage biomass of nitrogen equal to number of nitrogen atoms into atomic mass of nitrogen divided by molecular mass into 100। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो परसेंटेज बायोमास ऑफ नाइट्रोजन की जगह में दिया है 17.28 इक्वल टू, तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम मानो कि x है इनटू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14, मोलिकुलर मास 162 इंटू 100। तो आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ से x इक्वल टू मिल जाएगा 2। मीनिंग इस एल्कालॉइड का एक ही मोलिकुल में 2 नाइट्रोजन एटम है। तो यही है नंबर ऑफ एटम्स। अगर कैलकुलेट करना है मास परसेंटेज ऑफ दैट एलिमेंट इज गिवन, मोलर मास इज गिवन, देन उसी एलिमेंट का वो कंपाउंड में कितना एटम्स प्रेजेंट है, तो ये फॉर्मूला। तो नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। द अनदर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4। नाउ ये 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, a crystalline salt Na2SO4.X H2O on heating loses 55.9% of its weight, full stop। The molecular formula of the salt is, so these are the option given. First option Na2SO4.5H2O, second option Na2SO4.6H2O, third option Na2SO4.2H2O, fourth option Na2SO4.10H2O। तो मीनिंग इस x का वैल्यू निकालना है हमने, ये मीनिंग यही है। ये क्वेश्चन से x का वैल्यू निकालना है। जब भी x का वैल्यू मिल जाएगा तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो इस जो क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन का एक्चुअली आंसर क्या है, तो इसको हम वेरीफाई करेंगे। तो उसी के लिए गो टू द सॉल्यूशन फर्स्ट, द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बिफोर सॉल्यूशन लिसन, ये जो
क्रिस्टलाइन हाइड्रेटेड सॉल्ट है, तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट जब हीट किया जाता है ऑन हीटिंग, तो ये पहले ये वाटर मॉलिक्यूल वेपर बन के रिमूव होता है। द वाटर मॉलिक्यूल्स विल रिमूव इन द फॉर्म ऑफ वेपर ऑन हीटिंग। तो व्हेन वाटर मॉलिक्यूल विल रिमूव, तो मास ऑफ दिस सॉल्ट आल्सो डिक्रीजेस। वो डिक्रीज मास के परसेंटेज को क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिक्रीज मास के परसेंटेज दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो वो यूज करके हमको एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सी हियर परसेंटेज बाय मास ऑफ H2O इक्वल टू, तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, सीधा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक ही मॉलिक्यूल में x नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस सॉल्ट। ये जो सॉल्ट है इसका मॉलिक्यूलर मास, सोडियम सल्फेट जो है उसका फर्स्ट पार्ट Na2SO4 के मॉलिक्यूलर मास 142 प्लस 18x इंटू 100। तो ये परसेंटेज लॉस कितना दिया, 55.9 इक्वल टू 18x डिवाइडेड बाय 142 into 18x into 100. So after calculation you will get approximately 10. तो x जब approximately 10 मिल गया तो वो x की जगह में वो वैल्यू पुट करो। आफ्टर पुटिंग देखो कितना आएगा, 10H2O। तो 10H2O मीनिंग इज सी हियर, गो टू द प्रीवियस पेज। तो ऑप्शन देखो, अभी ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो क्रिस्टलाइन सॉल्ट के ऊपर ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इसी पैटर्न में कोई और क्रिस्टलाइन सॉल्ट देके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो डेटा वैल्यू ऐसा ही दिया जाएगा, जो ऑन हीटिंग दैट परसेंट ऑफ मास लॉस हुआ है, दैट परसेंटेज जो भी दिया हुआ है। तो फ्रॉम दैट पार्ट हाउ विल यू कैलकुलेट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट सॉल्ट हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। तो हमारा मेथड यही है। आफ्टर कैलकुलेशन दिस इज द आंसर। तो ठीक है, आज के लेक्चर में हम तो यहीं पे रखेंगे। द नेक्स्ट क्लास हम आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे विद दैट वन स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन, अनदर टॉपिक। तो परसेंटेज एलिमेंट के ऊपर यही फोर टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स जनरली आस्किंग इन द एग्जाम। तो इफ क्वेश्चन आस्क्ड बेस्ड ऑन दिस फोर मेथड्स, आई थिंक स्टूडेंट के लिए कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। ठीक ठाक से प्रैक्टिस करो, एवरीथिंग। इफ द क्वेश्चन आस्क्ड इजीली यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए रखते हैं कि बाय।